students. The next topic that we are going to discuss today, it is limitations of the civil disobedience movement. If you remember last day, in last class what we have discussed? We have discussed regarding the limitations of the civil disobedience movement. In that context, we have discussed about the Dalit participation. We have discussed about the Gandhi and Ambedkar's role and how Ambedkar and Gandhi, through the Pune Pact, they got the resolution to resolve the problem of Dalit participation. Next, one of the very important topic that we are having is Muslim participation in the civil disobedience movement. Muslim participation in the civil disobedience movement was very much lukewarm. Lukewarm means very limited. Muslims were kept themselves away from the civil disobedience movement. Unlike Dalits, Muslims were also having their own issues. So today we are going to discuss why did Muslim participation in the civil disobedience movement was very less. Why Muslims were very much apprehensive towards the civil disobedience movement. Now let's start. If you remember, when Gandhi had started non-cooperation movement, Khilafat was also become the part of non-cooperation. Actually, the non-cooperation movement had started on the issue of Khilafat itself. If you remember about the Ali brothers, why Khilafat movement was started? To restore the power and prestige of Khalifa. After the First World War, Turkey, the Ottoman Empire, was disintegrated, and that lowered the power and prestige of Khalifa. Who was Khalifa? Khalifa was the supreme religious group in Islamic world. So Muslims, a group of Indian Muslims, I am not telling that all the Muslims, I am just emphasizing upon a group of Indian Muslims were very much annoyed with the act of this British government, and they have started the Khilafat movement to restore the power and prestige of Khalifa in Turkey, in Ottoman Empire. But if you remember, non-cooperation movement had been withdrawn in 1922 with the Chauri Chaura incident. Nowhere Congress and Gandhi spoke about Khilafat. Khilafat movement was still alive, but non-cooperation movement was called off. This incident created a kind of doubt to the minds of the group of Indian Muslims regarding the Congress approach towards the Muslim interest in India. Once the movement had started, Khilafat and non-cooperation together, they felt that until or unless Khilafat had not been called off, how non-cooperation can be called off by Gandhi? But Gandhi was having their own scenarios, their own circumstances. So Gandhi did it what he found justified. At another side, Khilafat movement was going on. So that created a kind of distrust between Congress and those group of Indian Muslims. Muslims were started feeling that Congress is not very much interested to the demands of the Indian Muslims. It was one of the major points, it was the seed to the minds of the Indian Muslims. They feel that Congress is not taking their issues. Now, second one, open association of Congress with Hindu Mahasabha. This is one of the another point that just broaden that trench between the Congress and the Muslim League. Now, League was established in 1906. Now, League gradually emerged as one of the major party of India
that speaks about the Muslim interest. So now, when Congress was just found associating itself with Hindu Mahasabha was an orthodox organization that emphasized upon Hindu interest, that speaks about making India a Hindu Rashtra. Some of the leaders of Congress were also associated with the Hindu Mahasabha. For example, Mr. M. Jacob. He was the leader of Congress as well as he was also associated with the Hindu Mahasabha. And he was very much aggressive towards the Hindu interest. So when Congress in somehow found this associating with Hindu Mahasabha, that also created a kind of suspicion to the minds of the group of Indian Muslims, and League took this issue. Muslim League had raised this issue that Congress is associating or openly supported Hindu Mahasabha, as Mr. Jacob was sharing the stage of Hindu Mahasabha as well as the Congress. So that gives somehow some negative mindset to the Indian Muslims. Again, I am emphasizing, when I am using the word Indian Muslim, I am not talking about all Muslims living in India. There were a major section of Indian Muslims, those who were having such kind of feeling of alienation. Next point that created such kind of doubt is militant passion in both communities provoked clashes and riots. Militant passions. It means in both the communities there were a group of people who believed that through the violence, through killing the opponents, they could achieve their goals. A group of Hindus also, they felt that they should dominate. Only this way they could just make Muslims mum. On the other side, Muslims were also feeling that Hindus were trying to dominate, so they should also retaliate to the militant passion. That also created a great distrust in the minds of Muslim communities also and to those group of Hindus also. Next one. Difference cropped up on the issue of representation in future assemblies. Means Muslim League have raised this issue that after independence of India, what will happen? Muslim League has created a new picture in the minds of the Indian Muslims that after the independence or after the civil disobedience movement too, whatever concession, whatever new rules will be made that will favor Hindus. They also created a new drama that after independence, India will be a Hindu Rashtra and Muslims will be treated as a second-class citizens. They had to live under the Hindu dominance. League also created a new drama that Congress is actually a Hindu party. And for that, they were raising the issue of Hindu Mahasabha and how Mahasabha has been openly supported or associated with Congress. So these were the new dimensions that came in the Indian society and Indian politics. So they felt that in future assemblies, Muslims would not be given equitable partnership or participation in the government. So it was also a kind of feeling of alienation. Next one is, both communities were filled with suspicion and distrust. Ultimately what had happened? What was the result? Both the communities were feeling a kind of doubt towards each other. देखिए जब गलतफहमियां होंगी समाज में, तो गलतफहमियों से क्या होगा? अविश्वास के वातावरण में आप कोई भी सही काम भी आप नहीं कर पाएंगे। जहां अविश्वास है, अविश्वास, वहां पे कभी भी कोई भी कार्य
सहयोग रूप में नहीं कर पाए। तो दोनों तरफ शक, दोनों तरफ संदेह का वातावरण है। दोनों ही कम्युनिटीज एक दूसरे को संदेह के वातावरण से देख रही थी। कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी एंड नेहरू, Abul Kalam Azad, they all were trying to just cover up such kind of gaps, but the intensity of such kind of doubts were too high. So they have tried their level best, but they failed to do so. So ये माहौल बनता और ये लगातार गंभीरता से भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इसका एहसास सबों को था, सब लोग प्रयास कर रहे थे, परंतु यहाँ जो तीसरी कार्ड कौन थी? वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। दे जस्ट पुशिंग मुस्लिम लीग टू रेज देयर डिमांड्स अगेंस्ट द कांग्रेस। दिस वाज द मेजर इश्यूज दैट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ डिस्ट्रस्ट टू द माइंड्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। सो अंडर दैट circumstances, last one also I have written that Muslims feared domination by Hindus and loss of their cultural identity कि after independence अगर भारत आजाद हो जाता है तो हिंदुस्तान क्या होगा? हिंदुस्तान हिंदुओं के अधीन होगा। कांग्रेस मतलब हिंदू पार्टी। अब इस सिनारियो में क्या हो सकता है? इस सिनारियो में जब कांग्रेस ने, गांधी ने मुस्लिम सिविल मूवमेंट की बात की तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन लिमिटेड थी, ऐसा नहीं था कि सारे के सारे इंडियन मुस्लिम्स इससे अलग थे। याद कीजिएगा, कांग्रेस वाज आल्सो हैविंग अ लार्ज लीडरशिप ऑफ मुस्लिम लीडर्स, बट एज फार एज मुस्लिम पार्टिसिपेशन इज कंसर्न, कांग्रेस वाज लूजिंग इट्स होल्ड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो एंड लीग वाज गेनिंग, और लीग ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। तो ये जो इश्यूज थे जिसने इन दोनों समुदायों के बीच जो गैप को वाइडन किया। तो यहां से आपसे सवाल ये पूछे जाएंगे, व्हाई डिड इंडियन मुस्लिम्स lukewarm towards the civil disobedience movement, or why did Muslims were not enthusiastic towards the civil disobedience movement? अब चलते चलते कुछ बातें और भी करते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड तो है लेकिन चैप्टर में नहीं। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान यहाँ पे ये भी कहते हैं कि खुद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने भी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर दी कि मुसलमानों के अंदर वो खौफ पैदा हो, वो डर। और सच पूछिए वो डर आज भी है। आज जो एक कम्युनिज्म इंडिया की एक मेजर इश्यूज बन के आई है, उसकी वजह वो नहीं है, ये सब उन वजहों में से एक है। वो अविश्वास, कम्युनिज्म, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पे लोगों में दुश्मनी, वो वास्तव में अविश्वास की ही प्रकृति है। अविश्वास जब है वही द्वेष आएगी, नफरत है। तो मैं बात कर रहा था कुछ चीजें अनजाने में हुई जिसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि when गांधी was just explaining towards its dream about the Ram Rajya, गांधी से जब पूछा जाता था कि आप एक कैसा हिंदुस्तान था, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, तो गांधी बार बार कहते थे कि मैं एक राम राज्य की कल्पना करता हूं। बच्चों, यहाँ पे गांधी के राम राज्य की कल्पना का मतलब हिंदू धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य नहीं था। यहाँ उनके राम राज्य का आशय था एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे सुख शांति समृद्धि हो, आपसी सहयोग हो, भाईचारा हो, और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़े, सेना की भी जरूरत नहीं पड़े, पूरी की पूरी अहिंसा के ऊपर आधारित एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते थे। एक बहुत बड़े आदर्शवादी की परिकल्पना थी। तो इसे गांधी राम राज्य के साथ जोड़ा करते थे, परंतु इसी राम राज्य की अवधारणा को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। इस मुस्लिम समुदाय के सामने उसी गांधी को भी दिखाया कि गांधी भी कहीं न कहीं हिंदूवादी हैं और वो हिंदू डोमिनेंस की ही बात कर रहे हैं।
member of Congress party, one of the prominent member of Congress party. But after that, he just left the Congress and become the member of that Muslim League. He became the president of Muslim League, and then after separatist demands were started. और 1940 में आपको तो पढ़ना है सिविल मूवमेंट है। 1940 में लीग ने खुल के डिमांड कर दी लड़के लेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद से हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ, दंगों का, फसादों का, धीरे धीरे भारत की विभाजन की रूपरेखा तैयार हो गई। खैर वो हमारा विषय नहीं है, क्लास 8 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। यहाँ हम इस चीज पर फोकस करेंगे, तो यहाँ पे आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन लिमिटेड क्यों थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न या तो 3 नंबर में या 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, और अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, वो है आपका दी कलेक्टिव बिलोंगिंग का कल्चरल डायमेंशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे कि क्या केवल भारतीय राजनीति में जो राष्ट्रीयता की भावनाओं की जो उपज है, वो भावना क्या केवल एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट से आई है, या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उसमें बात की थी कि औपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष, यानी अंग्रेजी सत्ता को भगाने के लिए संघर्ष हुई थी, क्या उसी से भारतीय राष्ट्रीयता की जन्म है? Whether the Indian nationalism is the offspring of the anti-colonial movement only, or there were other dimensions also that paved the path for the rise of the Indian nationalism. तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे how culture played an important role in inculcating the idea of nationalism. ये anti-colonial movement के साथ-साथ जो हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल डायमेंशन, उसने भी भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करने में, मजबूत करने में बहुत बेहतरीन रोल प्ले किया। तो अब हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। The next topic is sense of collective belonging. I have just spoken regarding whether it is only the anti-colonial sentiment that was responsible for the rise of Indian nationalism, or apart from the anti-colonial movement, अर्थात विदेशी शासन से मुक्ति के संघर्ष के अलावा जो अंग्रेजी सत्ता को हटाने के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, क्या केवल वही रिस्पॉन्सिबल है भारत में नेशनलिज्म की भावनाओं को जन्म देने में, या भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय है, यानी नेशनलिज्म की जो राइज है, उसमें एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अलावे उसके अलग भी कुछ और भी कारक हैं या नहीं? यानी क्या और भी कोई फैक्टर्स थे जिन्होंने भारतीयों को यूनाइट किया, जिन्होंने भारतीयों के हृदय में एकता की भावना का संचार किया, उन्हें एक साथ खड़ा किया? यस, हम उसी प्रश्न की तलाश में हैं, और ये टॉपिक हमें उसी प्रश्न का जवाब देगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम संघर्ष तभी शुरू करते हैं जब हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं। तो मानसिक रूप से तैयार होगा यानी कि हमारे अंदर विचारों की वो एक भावना पैदा होती है जब हम इस चीज को महसूस करते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो एक सिस्टम बना के दी गई है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट इज नॉट एज पर आवर एस्पिरेशन। तो जब हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार नहीं, हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं है, तो सोचते हैं और तब हम उसको रिएक्ट करते हैं। पहले हम विचारों को अपने अंदर ढालते हैं, उसके अंदर स्वयं को तैयार करते हैं, तब हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो व्यवहार था, अब हम देख रहे हैं कि वो विचार पैदा करने के पीछे क्या क्या कारण थे। एक तो कारण हमने देखा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूल्स थी, जिसने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, इंडियंस के जीवन को परेशानी में डाल दिया, उन्होंने लोगों को बांध किया। और दूसरा फैक्टर जो एक और भी महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो चीजों को जोड़ने का काम करती है। भारत एक विविधताओं का देश है, लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी।
Even its population belongs to diverse groups, community, language group, religious group, practices, culture, all are different. कैसे इनको एक किया गया? तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी हमारी कल्चर। ये जो कल्चर का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी बारीकी है, इसको समझते हैं। देखिए, हम अगर ये सोचें कि हम कमजोर हैं, once we start feeling कि we are weak, we are unable to just retaliate against the British government, that lower our confidence. We cannot raise our head. Never. मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। ये भावना याद रखने की भी थी। अगर आप में ये भरोसा है, खुद पे आपको यकीन है, तो दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं। विवेकानंद ने भी कहा था, Whatever you feel, you become the same. जो आप महसूस करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, आप वही बनेंगे। तो once the British government got its hold in India, they had started their own propaganda. What was the propaganda? The propaganda was to just lowering the prestige of Indian culture. They raised the fingers upon the Vedas and Indian culture. For them, it is a sign of mildness. They introduced English education system in India, not for their own, only for their own betterment, not for the Indians' betterment. Through this Western education, they were trying to just demolish the pillars of Indian culture, Indian traditions, literature. They undermined the Indian literature also. मैकॉले ने, लॉर्ड मैकॉले, जिन्हें इंग्लिश शिक्षा का जनक माना जाता है हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा था कि लंदन की किसी लाइब्रेरी में रखी हुई किसी अलमीरे का एक तख्ता भारत के तमाम वेदों से भी ज्यादा कीमती है। आप समझ सकते हैं कितनी नेगेटिविटी बनी हुई थी। सो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जिसमें स्वयं भारतीयों को लगने लगा कि हम लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, असभ्य हैं, हमें सांस्कृतिक ज्ञान का कोई एहसास नहीं, हमें सभ्यता का कोई पुट नहीं। यहीं से वो टर्निंग पॉइंट है। ये चीजें उनके लिए मददगार हुई जब भारतीयों के अंदर ये विश्वास खत्म हो गया। But as the freedom struggle was started gradually, once the more and more Indians got education, they become educated ones, they started discovering new things. और उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास को फिर से उन पन्नों को उलटना शुरू किया और उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि देखो, भारत की अपनी सभ्यता संस्कृति काफी समृद्ध थी और आज जो हमारी बदहाली है उसके पीछे एकमात्र वजह ये अंग्रेजी दासता है, विदेशी प्रभुत्व है। They reinterpreted the history that discovered the glorious past of India. Once upon a time, India was the guru in the world. In science and technology, India was the leader. In trade also, India was the leader. India was one of the richest country in the world. So that raised their confidence. Indians start thinking about their own identity in a new dimension. ये उनके मोराल को बढ़ाती है, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है कि हम याचक नहीं थे, हम दाता थे और हमें अपनी उस गरिमा को प्राप्त करना है। ये देखिए, भावनाओं का एक नया वेग पैदा होता है। जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावनाएं पैदा होने लगती हैं, मानसिक रूप से वो तैयार होने लगता है, तो उसकी भुजाओं में वो बल महसूस होता है। तो एक नए दौर में वो व्यक्ति प्रवेश करता है और संघर्ष के लिए तैयार होता है। ये संघर्ष की पृष्ठभूमि को पैदा करता है, उनके अंदर ये एहसास कराता है कि हम हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे बेहतरीन सभ्यताओं के अंश हैं, हमें कोई भी मिटा नहीं सकता है और हमें मिल करके संघर्ष करना है। हम एक थे, एक रहेंगे। ये भावना उस रीडिस्कवरिंग ऑफ जो इंडियन ग्लोरी है, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री के थ्रू, जब रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री चलेगी तो क्या होगी, हम अपने अतीत को देखेंगे। कई सारे फोकलोर्स, फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, किंवदंतियां जो अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भारत के क्षेत्रों में अलग अलग रीजन्स को लेकर के थे, जैसे कि उस इलाके किसी महामानव को लेकर के, किसी महापुरुष की वीरता को लेकर के,
तो उसके प्रति लोगों की जो भावना पैदा होगी, उनकी वीरता से प्रभावित होगी। ये वीर पुरुष कौन थे? जो लोकल किंवदंतियों में जीवित थे, फोकलोर्स में, लोक कथाओं में। तो ये उस समय के, उस इलाके के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ जिन्होंने अपनी बहादुरी से, अपने शौर्य से अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। अब ये रीडिस्कवरी हो रही है, कलेक्शन हो रही है, और उसको कलेक्ट कर करके किताबें लिखी जा रही है। जैसे एग्जाम्पल है नृत्य शास्त्री। नृत्य शास्त्री ने तमिल टेल्स को मिला करके, तमिल लोक कथाओं को मिला करके उन्होंने लिखी एक पुस्तक, द फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया। द मेन subject of this particular book is just a collection of folklores that was prevailing in South India to just give a moral booster to the Indian people living in those areas। उन्हें ये एहसास कराना कि हमारा अतीत सौभाग्यपूर्ण था, हम कभी भी कमजोर नहीं थे। उसमें कई सारे जो रीजन्स थे उस इलाके में, उनकी कहानियों को उन्होंने समझा। इससे क्या लोगों के अंदर वो एक भावना, आत्मविश्वास था, और वो एक सेंस ऑफ यूनिटी महसूस करते हैं। तो यहाँ लोग कल्चर को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जब विचारों की हम बात करते हैं तो अपने विचारों के मुद्दे ही अपने समर्पण को दिखाने के लिए हम अपने विचारों को विजुअलाइज करते हैं किसी इमेज में, जो कहते हैं एलाबोरेट, विजुअलाइजेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। जब हम किसी विचार को किसी चित्र के रूप में, किसी सिंबल के रूप में जब हम चित्रित करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो उसको एलाबोरेट कहते हैं। तो अब यहाँ भी जब भारतीयों के अंदर भारतीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेने लगी, तो वो अब अपनी इस भावनाओं को एक इमेज के रूप में देखने लगे। Now I'm talking about Bharat Mata, image of Bharat Mata. In your book also, few images related to Bharat Mata has been given. These images resembling the different phases of Indian mindset. In one of the image, you notice that the Bharat Mata image in a very much Asiatic nature. Asiatic मतलब एक संन्यास मुद्रा के रूप में। एक हाथ में पुस्तक है जिसमें वो ज्ञान की बात कर रही है, एक हाथ में फसल है जो भारत की खेतिहर समाज की ताकत की बात कर रही है, और एक दूसरी इमेज है जिसमें भारत माता के साथ बैकग्राउंड में हिमालय पर्वत है, और साथ में लॉयन, शेर, राष्ट्रीय झंडा हाथ में है। तो ये उस भारत की तस्वीर को बयां कर रही है जब भारत एक मजबूत होकर के उभर चुका है और अपनी ताकत का उसे एहसास हो चुका है। शेर ताकत का प्रतीक है, हिमालय भारत की उस सीमा का प्रतीक है कि वहां तक हमारा आधिपत्य है। जबकि एशियाटिक मुद्रा में उस समय की भारत की बात है जब हम प्राचीन काल में भारत माता को रूप में देखते थे, एक ज्ञान की देवी, समृद्धि की देवी, धन की देवी के रूप में एक शांत मुद्रा में देखते हैं। ये अंतर है। तो जैसे जैसे भावनाओं का विकास होता है, उसी प्रकार से इस प्रकार की भावनाओं का रूपांतरण चित्रों के रूप में होता है, और चित्रों के थ्रू हम अपने आप को एसोसिएट ज्यादा कर पाते हैं। हम में से किसी ने शंकर भगवान को नहीं देखा, हम में से किसी ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं देखा, तो हमें कैसे पता कि शंकर भगवान ऐसे दिखते? हमने उनके विषय में सुना है, पढ़ा है, और उसके अनुसार हमने उनका एक चित्र बनाया है, और उसके साथ हमारा एक लगाव हो गया, समर्पण हो गया, समझा हो गया। हमें एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है। हम चाहे किसी भी जाति के हो, हिंदू धर्म के अंदर किसी प्रकार के सामाजिक स्थिति से हो, आर्थिक स्थिति हमारी जो भी हो, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमारी पूजा पद्धति लगभग एक प्रकार की होती है। शिव को हम जल अर्पित करते हैं, शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कम्युनिटी के लोग भी आएंगे जो हिंदू धर्म के अंदर है, भले ही वो हमसे अमीर हो या हमारी स्थिति से नीचे हो या हमारे बराबर हो या दूसरी जाति के हो, वो भी उसी प्रकार की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तो ये क्या हुआ, उस आइडिया को हमने एक चित्र का रूप दिया जिसने लोगों को जोड़ने का काम किया। अब इसी प्रकार से देखिए, जब हम विचारों की बात करते हैं तो विचारों को हम शब्दों के रूप में, कविताओं के रूप में, गीत के रूप में भी हम रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। गौर कीजिए, 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत बजते हैं, जब आप राष्ट्रीय गान गाते हैं हर दिन सुबह में अपने विद्यालय में, असेंबली के समय में, you feel something different on that particular point of time. You feel that some special sensation is going on in your mind. एक अलग प्रकार का वातावरण पैदा हो जाता है, एक भावना पैदा हो जाती है देशभक्ति से ओत-प्रोत। आपके शरीर में, आपकी भुजाओं में एक अद्भुत बल आने लगता है, गजब का वेग आता है। ये क्या है? यही तो देशभक्ति की भावना है।
just creating hymns, making songs. For example, during the freedom movement, Vande Mataram became one of the symbol of India's great fight. Who wrote about the Vande Mataram? It was Bankim Chandra Chatterjee or Chattopadhyay. This particular hymns has been taken from the book Anand, जो उन्होंने लिखी थी, सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि में लिखी गई थी। अब भारत माता की मैं बात कर रहा था, तो भारत माता के आइडिया को, उस विचार को जन्म देने में भी इसी आनंदमठ पुस्तक का रोल है। It was the first time when through his book Bankim Chandra Chattopadhyay has created the image of Bharata. Created, I am specializing, I am emphasizing upon created. उन्होंने विचार को पैदा किया, बट इमेज को पेंटेड किसने किया? तो वो थे इमेज को पेंट करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर। देखिए कैसे विचार बनते हैं, विचारों का एक मूर्त रूप आता है, ये हमें जोड़ती है। इसी प्रकार से फ्लैग, इंडियन फ्लैग बनने से हुए, ये जो आज का झंडा है वो कई दौर से गुजर के ये झंडे के रूप में आया। इस झंडे में अलग अलग प्रकार के विचारों को समावेश किया गया था। गांधीयन ट्राइकलर भी बनी थी, इसमें चक्र की जगह पे चरखा था। उसके पहले भी झंडों का अलग रूप था जिसमें कमल के फूल लगे हुए थे। तो कई दौर से ये झंडा भी हमें जोड़ने का काम करता है और हमें एक साथ खड़ा करता है। We feel a sense of unity through these symbols। तो हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे रोल ऑफ कल्चर। तो आप देख रहे हैं इन चरणों से गुजर करके हाउ कल्चर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाइंडिंग द इंडियन सोसाइटी, द सोसाइटी दैट वाज हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन, बट द कल्चर, द हेरिटेज was the same, and that was going to play a very important role. So a question may be asked for 5 marks. How far or state the role of culture in the rise of Indian nationalism, or Indian nationalism is a result of anti-colonial movement justified? तो आपको बताना है कि इंडियन नेशनलिज्म की जो राइज है केवल एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का पार्ट नहीं है, कल्चर का भी रोल उसमें है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो अंत में हम लोगों ने क्या किया, कंक्लूजन की बात करते हैं। हमने देखा कि भारत की आजादी, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना की मैं बात कर रहा हूं, तो sense of nationalism in India has gone through various phases. The rise of nationalism had started, the sense of unity has been started among the Indians, that took its roots among the Indians with the establishment of British rule in India. As they had united, a political unity was there, they introduced a common law, common rules, regulations, administration was common, political system was one. So it binds Indians. The means of transportation, railway, also binds Indians together. Now Indians were just traveling different parts of the country, and they come to know about the other people living in next area. So उनका रोल है, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट के तहत जो काम किए गए उनका इनडायरेक्ट रिजल्ट इंडिया के नेशनलिज्म के राइज में है। ब्रिटिशर्स नेवर डन एनी वर्क टू गिव द बर्थ ऑफ द नेशनलिज्म। व्हाटएवर थिंग हैज कम अप, इट वाज द बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर वर्क। दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन। इस इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस के अंदर रीइंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री की भावना को जन्म दिया। उन्होंने इतिहास की पुनर्व्याख्या की और उन्होंने पाया कि भारतीय इतिहास तो सबसे समृद्ध इतिहास है। तो देखिए बाय प्रोडक्ट। फिर हमने देखा कि कैसे गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के साथ भारत की राजनीति एक नई दिशा की ओर जाती है। अब नेशनल मूवमेंट बिकम द मास स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब करोड़ों हिंदुस्तानियों की ताकत उसके साथ जुड़ती है।
हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा, आइडिया ऑफ सत्याग्रह को देखा। एक सत्याग्रह के रूप में एक नई हथियार मिली हिंदुस्तान को, और उस हथियार को चलाने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था गांधी। हमने देखा कि कैसे भारत के अलग अलग समुदाय के लोगों ने भारत की आजादी में अपने विचारों के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार अपना रोल प्ले किया। हमने ये भी देखा कि इस आजादी की लड़ाई में असंतोष के भी पुट थे, यानी असहमति के कुछ स्वर थे। क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है, तो हर ग्रुप अपने तरीके से चीजों को एनालाइज करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, तमाम मतांतरों के बाद, apart from these differences, the ultimate goal for every community was to uproot the British rule from India. That was the reality, and that was the ultimate goal of all this diverse struggle. So ये भारत की आजादी इन रास्तों से चल के आई हुई। आपके सिलेबस में इतनी ही पार्ट है, लेकिन इसके बाद फिर एक नया डायमेंशन आएगा जब आप एक में पढ़ चुके हैं। वो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या परिस्थितियां हुई थी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है, वो आप एक में पढ़ चुके हैं। यहाँ बेसिक ऑब्जेक्टिव उस गांधीयन फेज को दिखाना है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को बिल्कुल निर्णायक दौर में पहुंचा दिया और लोगों की भावनाओं को एक कर दिया, सेंस ऑफ यूनिटी कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैप्टर्स को समझा होगा। किसी प्रकार की कठिनाई होने पे आप हमें बता सकते हैं। आपके क्लासेस में ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं, आप हमें आसानी से अपनी बात रख सकते हैं और हम टीचर्स आपके प्रश्नों को सॉल्व करने का पूरी प्रयास करेंगे। थैंक यू।